Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all to your channel MK Classes. Students, we are doing chapter 2nd of class 12th, that is solutions, and it's lecture 3rd. Bachcho, this is the flow chart of the various topics which we are going to discuss in this series. And today we are at this stage, that is of vapor pressure and Raoult's law. Students, our today's subtopics are: first we'll discuss the vapor pressure, then factors affecting vapor pressure, then we'll discuss the vapor pressure of liquid solutions and Raoult's law, that is Raoult's law for the volatile solids. Then we'll discuss the vapor pressure of the solutions of solids and liquids and Raoult's law, that is Raoult's law for the non-volatile solids. And at last, we'll discuss the Raoult's law as special case of Henry's law. Hope you will enjoy. Let's take the today's first subtopic, that is vapor pressure. बच्चों, vapor pressure को understand करने के लिए let's take first the evaporation. First of all, what is evaporation? Let's say this is a water. Let's say बेटा water का liquid phase से gaseous phase में जाना. What is that? Evaporation. What I have said बेटा, liquid phase से gaseous phase में जाना. Is that clear? Gaseous phase में जाना बेटा, that is a what? Evaporation. What is that? That is of this evaporation. Now बच्चों, let's say the water molecules, they are going to escape from the surface. Let's say these are the surface molecules of the water, and they are going to escape from the surface बेटा. Is that clear? जब इनकी intermolecular forces of attraction जो है इन water molecules की बेटा ओवरकम हो रही है, तो वो कहां जा रहा है? गैसियस फेज में जा रहा है. और इस वाटर का लिक्विड फेज से इस तरह गैसियस फेज में जाना, that is evaporation. Let's say now this is a closed vessel and evaporation is taking place over here. अब बेटा with the passage of time, what is happening over here? यहां क्या हो रहा है? Number of gaseous molecules, they are going to increase. Number of molecules of the water beta, they are going to increase in gaseous phase. Gaseous phase में number of molecules क्या कर रहे हैं? Increase कर रहे हैं. Then what will happen? They will collide. ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ टकराएंगे. Let's say this is going to collide with this one and this one is going to collide with this one. Then what will happen? They will condense beta. They will go into the liquid state. Is that clear? Or as well as when these molecules will strike on the walls of the container beta, like this. Clear? So again they will condense. So beta, ये जो आपकी condensation है, now beta, after this what will happen? That when they will strike on the wall of the container as well as when they will collide with each other, these water molecules in the gaseous phase will condense. So now gaseous phase से पानी का liquid phase में जाना बेटा. Is that clear? Liquid phase में जाना. What is that? That is a what? Condensation. Condensation. That is a condensation. Now बेटा means forward में अगर हम यहीं इसको देखें बेटा, means forward में that is a evaporation, backward में क्या हो गया ये आपकी condensation. Is that clear? So liquid phase का gaseous phase में जाना, evaporation. Evaporation. Is that clear? और gaseous phase का liquid phase में जाना, condensation. Is that clear? जब बेटा इन दोनों के rates बराबर हो जाएंगे, that is a equilibrium stage. So at equilibrium, rate of this evaporation will become equal to the rate of condensation. Rate of evaporation किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? Rate of condensation के बराबर. मीन जिस स्पीड से आपके वेपर्स बन रहे हैं उसी स्पीड से आपके क्या हो रहे हैं? वो वेपर्स आपके लिक्विड फेज में जा रहे हैं बेटा. इज दैट क्लियर? सो इस स्टेज पे बेटा whatever pressure these vapors will exert on this surface of this water. Is that clear? जो भी प्रेशर ये exert करेंगे इस स्टेज पे at equilibrium stage
on the surface of this water beta or solution, if we have taken some solution, लेकिन मैं यहां वाटर की बात कर रहा हूं, तो वाटर के सरफेस पे जो भी प्रेशर ये वेपर्स जो है इक्विलिब्रियम पे बेटा एक्सर्ट करेंगे, दैट इज योर नथिंग बट इट्स योर वेपर प्रेशर। वही आपका क्या है, वेपर प्रेशर है। सो ना बच्चों, अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है वेपर प्रेशर की, तो क्या होगी? वेपर प्रेशर जो है बेटा, दैट इज नथिंग बट इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स on the surface of the solution or liquid beta is called vapor pressure. Hope students this is clear. Now bachcho, here definition is there. The pressure exerted by the vapors on the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. Hope this is clear. Now beta, factors affecting the vapor pressure. There are the different factors which affect the vapor pressure beta, like nature of the liquid. ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड किस तरह की है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, देन योर टेम्परेचर, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल अफेक्ट द वेपर प्रेशर। नाउ बच्चों, फर्स्ट फैक्टर दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा इन डिसाइडिंग द वेपर प्रेशर। बच्चों, लेट्स टेक सम सॉल्यूशन बेटा। लेट्स से अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं इस सॉल्यूशन के, लेट्स से दिस आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन बेटा, यू नो, लेट्स से देयर इज सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मींस दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा वीक होगी, तो यू नो दीज मॉलिक्यूल्स विल इजीली एस्केप इनटू द गैसेस फेज। ये गैसेस फेज में इजीली चले जाएंगे। क्या होगा बेटा, गैसेस फेज में ये इजीली चले जाएंगे। कब? व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, अगर ये वीक है, उतना ही इजीली ये मॉलिक्यूल्स कहां चले जाएंगे, गैसेस फेज में चले जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म द वेपर। सो मींस वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर्स बेटा, उतने ही ज्यादा आपके वेपर्स बनेंगे। क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूल जो है बेटा, दे कैन इजिली एस्केप फ्रॉम लिक्विड फेज इनटू द वेपर फेज बेटा। स्टूडेंट्स, यही रीजन है कि जो आपका डाई इथाइल ईथर है, दैट इज हैविंग योर हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर इथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि आपके बेटा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इथाइल अल्कोहल में, लेट्स से C2H5, दैट इज OH बच्चों, then your OH, then it's a C2H5. Let's say these are the two molecules of your ethanol beta और ethyl alcohol. इनके बीच में क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या, there is some hydrogen bonding. तो इसी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से बेटा इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डाई इथाइल ईथर, क्योंकि डाई इथाइल ईथर में जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, दैट इज मिसिंग। सो बच्चों, दिस इज ड्यू टू द हायर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ योर इथेनॉल as compared to diethyl ether beta. Ethyl alcohol have lower vapor pressure as compared to that of your diethyl ether. Hope students this is clear. Now बच्चों, next is temperature. बच्चों always remember, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बेटा, उतना ही ज्यादा आपका वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि just to overcome intermolecular force of attraction when we are supplying some heat beta, we are increasing the temperature. What will happen? ये क्या करेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक कर देगा। क्योंकि बेटा जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी मॉलिक्यूल्स की बेटा। ठीक है, इट मींस मोर एंड मोर मॉलिक्यूल जो है बेटा, दे विल लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड बेटा, और वो कहां चले जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, हायर द टेम्परेचर, ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बेटा। बच्चों, दिस इक्वेशन इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द temperature and vapor pressure. Students, let's say P1 and P2 are the vapor pressures at the T1 and T2 temperatures beta. So how they are related?
that is given by your this Clapeyron equation beta. That is all log P2 upon P1 is equal to is enthalpy of vaporization upon 2.303 R beta T2 minus T1 upon T1 T2. Hope students this is clear. Now बच्चों, vapor pressure of the liquid solutions or Raoult's law for the volatile solutes. बच्चों, let's say we are having the volatile components of the liquid solution, or rather let's consider a binary solution beta, जिनमें आपके दो components हैं. Binary solution is there having your two components, जिनके आपके क्या है बेटा, टू कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हैं, वोलेटाइल हैं. दे आर योर वोलेटाइल. वोलेटाइल मींस दे आर हैविंग योर लो बॉइलिंग पॉइंट. लो बॉइलिंग पॉइंट इज देयर. इज दे क्लियर? सो बच्चों, जब हमने क्या किया, कोई सॉल्यूशन लिया जिसके दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हैं, वोलेटाइल हैं, और इन दोनों कंपोनेंट्स को किस में रखा, हमने क्लोज्ड वेसल में रखा. देन व्हाट विल हैपन, बोथ दीज कंपोनेंट्स जो हैं बेटा, दे विल वेपराइज. बोथ ऑफ these components will vaporize and they will go into the gaseous phase. और बेटा some equilibrium will be established between the liquid phase and that of the vapor phase. लिक्विड फेज और वेपर फेज में आपका इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश होगा, और इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे बेटा जो भी वेपर प्रेशर रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन बेटा, दैट इज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड सॉल्यूशंस. नाउ बेटा ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपके बाइनरी सॉल्यूशंस रहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स के, मतलब दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हैं, दे आर योर वोलेटाइल, और दोनों ही कहां चले जाएंगे, आपके वेपर फेज में चले जाएंगे. तो मींस वेपर फेज में आपके दोनों ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे बेटा. क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हैं बेटा आपके वोलेटाइल हैं. दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू गो इनटू द गैसियस फेज फ्रॉम द लिक्विड फेज बेटा. स्टूडेंट्स, मैरी रोल्ट वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने 1886 में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बेटा बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स बेटा. सो यही जो रिलेशनशिप था इनका बेटा, वही क्या कहलाया आपका, राउल्ट्स लॉ. जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस राउल्ट्स लॉ बेटा, लेट्स कंसीडर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. ए का जो आपका पार्शियल प्रेशर है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है दैट इज लेट्स से पीए, और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है बेटा, लेट्स से इट्स पीबी. और आपका पीए नॉट और पीबी नॉट ये क्या है, दीज आर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी बच्चों. और लेट्स से एक्स ए एंड एक्स बी, दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी. और इन्होंने क्या कहा बेटा कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, इज दैट क्लियर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्स ए. मींस जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का बढ़ता जाएगा बेटा, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा. उसी तरह बच्चों पीबी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्स बी. सो पीए is equal to PA naught beta, and this is of XA. So it means partial vapor pressure of any component that is equal to the product of partial vapor pressure of the pure component and its mole fraction beta. Similarly for the B component beta, partial vapor pressure of B, that will also be equal to your product of this vapor pressure of the pure component beta and that of its mole fraction. सो बच्चों यही था आपका राउल्ट्स लॉ. वो क्या कहता है बेटा कि जो फॉर एनी सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड्स बेटा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट के इन द सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर. अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स, व्हाट डज इट स्टेट बेटा, दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, और ये वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से हैं बेटा, ए एंड बी, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन
एट अ गिवन टेम्परेचर, जो यहां हमने बेटा शो किया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is equal to the product of vapor pressure of the pure component and its mole fraction. Hope students this Raoult's law is clear. Now students, from this we can find out total vapor pressure of the solution. और वो कैसे बेटा? By adding the partial vapor pressure of each component. क्योंकि दोनों ही आपके क्या हैं? Volatile components हैं. दोनों ही क्या हैं आपके? Volatile components हैं और दोनों ही they will contribute to the total vapor pressure. तो सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स बेटा वो किसके बराबर हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर, और दैट इज ऑफ पी टोटल. नाउ बेटा पी टोटल क्या होगा बेटा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. क्लियर? क्योंकि पी ए क्या था आपका बेटा? दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ योर पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी क्या था आपका? पी बी नॉट एक्स बी. जबकि हम जानते हैं बेटा कि जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन है दोनों कंपोनेंट्स का, इज दे क्लियर? दैट इज इक्वल टू 1. इज दे क्लियर? सो ये 1 है. सो एक्स ए क्या होगा बेटा? 1 माइनस एक्स बी. तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस एक्स ए हियर. क्लियर? एक्स ए की वैल्यू यहां पुट करें हम 1 माइनस, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी बेटा. देन वी विल हैव पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट, देन एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी बेटा, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी ए नॉट P naught B X B बच्चों. नाउ बेटा ओपन दिस ब्रैकेट बेटा. सो P A naught A माइनस P A naught X B प्लस P naught B X B. यहां बेटा अब हम क्या करें? X B को कांस्टेंट ले लें. सो P टोटल इज इक्वल टू P A naught प्लस X B, P naught B माइनस P A naught. Hope students this is clear. Now this is the variation of this P total with the मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस बी बेटा. और पी ए नॉट और पी बी क्या है आपके बेटा? कांस्टेंट्स हैं. सो दिस इज द लीनियर वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट बेटा. ना बच्चों ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बेटा, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा? व्हाट कैन बी द कंक्लूजन ऑफ दिस इक्वेशन? पहला बेटा कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है, नाउ दिस पी टोटल जो है सॉल्यूशन के ऊपर, वी कैन रिलेट इट आइदर टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट और यू कैन से ए कंपोनेंट. इसको ए से भी हम रिलेट कर सकते हैं और बी कंपोनेंट से भी हम रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि हमने यहां इस इक्वेशन, इस केस में हमने क्या किया है बेटा? पी टोटल को रिलेट किया है हमने बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से. ना बच्चों ये जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, दैट वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन. ये आपका क्या कर रहा है? टोटल वेपर प्रेशर जो है दैट इज गोइंग टू वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस बी कंपोनेंट इन दिस इक्वेशन बेटा. क्यों? क्योंकि आपका पी ए नॉट और पी बी नॉट जो है दे आर योर कांस्टेंट्स. ये क्या है? आपके कांस्टेंट्स हैं. और बेटा जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, दैट डिक्रीजेस और इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट बेटा. और बच्चों यही इक्वेशन और क्या बता रही बेटा कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है, दिस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस बी कंपोनेंट. क्लियर? अभी हमने ये पहले भी बात कर ली बेटा. और ये क्यों है? बिकॉज पी ए नॉट और पी बी क्या है आपके? दीज आर योर कांस्टेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बच्चों अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी ए एंड पी बी आर गिवन एज, अभी हमने किया था बेटा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. बच्चों जो आपका वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का बेटा, दैट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन, जिसको हम बेटा अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स से वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी. लेट्स से एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट. लेट्स से here it is of 1 suppose and xb obvious it will be 0. क्यों? sum of the mole fraction जो है that is equal to 1. अगर x a 1 है ना बेटा तो xb क्या होगा? 0 होगा. और on this side बेटा we have x a is equal to 0 और xb is equal to 1. So means when we are going from this side to this side, what is happening? Mole fraction of a that is going to decrease, whereas mole fraction of b is going to increase. Let's see the variation of the vapor pressure with respect to B beta. Now
just see partial vapor pressure of B that is going to increase. Clear? Why it is going to increase बेटा? क्योंकि आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट जो है इस साइड से इस साइड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां बी आपका कंपोनेंट जो है मोल फ्रैक्शन इसका क्या था, 0 था, यहां 1 है। सो बेटा यहां 1 है तो एक्स से 0 है बेटा, तो इट मींस दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस बी कंपोनेंट बेटा, दैट इज अ प्योर कंपोनेंट बी रादर। क्यों? क्योंकि आपका एक्स से यहां क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या है, 0 है। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी। उसी तरह बेटा अगर हम इस साइड से इस साइड को चलें, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपका ए कंपोनेंट जो है का जो मोल फ्रैक्शन है बेटा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो इट मींस दिस इज द वेरिएशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए। सो हियर एट दिस स्टेज बेटा एक्स ए इज इक्वल टू 1, क्लियर, और एक्स बी 0 है, तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। और इन दोनों का जो आपका सम होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू योर दिस P total beta. So this is your P total here. This is your P total beta, that is nothing but it's your PA plus PB. So बेटा जो आपका वेरिएशन है यहां पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A और B की और P total की विद द वेरिएशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन दैट इज शोन ओवर हियर. Hope students this is clear. Now students when XA is equal to 1 or XB is equal to 0 beta, the mole fraction A is pure, so PA is equal to PA not into XA, so that is your partial vapor pressure of A किसके बराबर होगा बेटा, pure component of your A के बराबर होगा, that I already have discussed बेटा. so उसी तरह बेटा जब आपका XA 0 है और XB 1 है तो आपका जो कंपोनेंट B है that is pure बेटा, it means so यहां जो PB होगा वो किसके बराबर होगा, PB not into XA, XB सॉरी XB यहां क्या है बेटा, दैट इज 1, तो XB 1 पुट किया बेटा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B जो है दैट विल बी इक्वल टू योर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट B. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बेटा P टोटल जैसे अभी पहले बताया हमने दैट इज द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स A एंड B, क्लियर, और P टोटल जो है दैट इज इक्वल टू योर PA नॉट XA प्लस P नॉट B XB बेटा. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा. नाउ कंपोजिशन इन वेपर फेज बेटा हम कोई दो कंपोनेंट्स लेते हैं 1 और 2 और उनका जो मोल फ्रैक्शन है y1 और y2 है इन द वेपर फेज. और बेटा ये भी जानते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो P टोटल जो होगा दैट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. और जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा बेटा ऑफ अ कंपोनेंट that is equal to the product of mole fraction of the component and total vapor pressure बच्चों. so बेटा P1 जो होगा partial vapor pressure of first component जो होगा that will be equal to the product of this mole fraction of one component बेटा into P total. उसी तरह partial vapor pressure जो रहेगा second component का बेटा that will be equal to your Y2 into P total बेटा. सो अगर हम इनका जनरलाइज करें बेटा तो लेट्स से पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट जो है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ y फॉर ith कंपोनेंट इनटू द P टोटल बेटा. नाउ सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स. बच्चों जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, ऑलवेज रिमेंबर इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल डिक्रीज. और ये क्यों डिक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि इवेपोरेशन जो है दैट इज अ सरफेस फिनोमेनन. लेट्स टेक सम वेसल बेटा, लेट्स से दिस इज सम वेसल ओवर हियर एंड इन दिस वेसल वी आर टेकिंग योर सम solvent here. Let's say this is some solvent over here. Is that clear? This was some pure solvent that is a volatile बच्चों. Let's say this is a volatile component बेटा. Now बच्चों if we add the non-volatile solute to this pure solvent, now this is some non-volatile solute. Let's say this was some non-volatile solute. Now this is some non-volatile solute which I have added बेटा, जिसको हमने ऐड कर दिया प्योर सॉल्वेंट में. अब what will happen,
ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, लेट्स से दिस सॉल्वेंट इज वाटर और इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल नॉट एस्केप फ्रॉम हियर बेटा, यहां से ये एस्केप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जो है दैट इज सरफेस फिनोमिनन, और कुछ सरफेस जो है यहां दैट इज ऑक्युपाइड बाय, उसको ऑक्युपाई किसने कर लिया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो यहां से इवेपोरेशन नहीं होगी। जब यहां से इवेपोरेशन नहीं होगी बेटा, देन व्हाट विल हैपन, इसका जो वेपर प्रेशर है बेटा दैट विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि आपका जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करेंगे किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, देन इट्स वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जो है दैट इज अ सरफेस फिनोमिनन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों जस्ट सी ओवर हियर, दिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लेट्स से दिस इज ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जबकि यहां क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इस केस में। यू जस्ट सी आपका जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज मोर ओवर हियर, लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए बेटा, जो रेड रेड आपको यहां दिख रहा है दिस इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहां वेपर प्रेशर क्या हो गया? इसका कम हो गया। जस्ट सी ओवर हियर द वेपर प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपका बेटा ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या कर रहा है? सरफेस को ऑक्युपाई कर रहा है, और उस सरफेस से आपका क्या हो रही है? इवेपोरेशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो वेपर प्रेशर है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा ये आगे जो एक टॉपिक है दैट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज बेस्ड अपॉन द वेपर प्रेशर। सो बेटा when we are adding some non-volatile solute to the pure solvent, its vapor pressure is going to decrease, और वो क्यों कर रहा है? Because evaporation is the surface phenomenon. Hope students this is clear. Now students, Raoult's law for the liquid solutions containing non-volatile solute. बच्चों जब हम क्या करेंगे, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में विच इज अ वोलेटाइल, तो वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे बेटा वो किसके रहेंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के रहेंगे। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो किसकी वजह से रहेगा बेटा? आपका सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से रहेगा, क्योंकि आपका सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर फेज में जा ही नहीं रहा है। और बेटा लेट्स से ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं और बी आपका सॉल्यूट है दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ बेटा जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा ए कंपोनेंट का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। सो पी टोटल जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस पी ए बेटा। सो पी इज इक्वल टू पी दैट इज ऑफ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू दिस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस ए कंपोनेंट बेटा which is a volatile that is equal to PA naught XA in accordance with the Raoult's law बच्चों। now बच्चों P solution जो है यहां वो किसके बराबर है? that is the pressure of the pure solvent बेटा into the mole fraction of the solvent। so बेटा ये जो Raoult's law है that can be stated as, कैसे बेटा कि किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जिसमें क्या है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, that is directly proportional to the mole fraction of the solvent, that is directly proportional to the mole fraction of the solvent। so PA is directly proportional to XA beta, so P is equal to PA, that is your equal to your PA naught and XA beta। so here you just see P is equal to PA naught XA। so बेटा P के नीचे अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, इसको नीचे ले गए हम P के नीचे, तो P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XA बेटा। ना बच्चों अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें बेटा, इफ वी सब्ट्रैक्ट ईच साइड ऑफ दिस इक्वेशन फ्रॉम 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XA। यू नो P बेटा दैट इज P टोटल, इज दैट क्लियर? और P सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो बेटा हियर PA नॉट ये ऊपर चला जाएगा बेटा, PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB, और ये 1 माइनस XA दैट इज इक्वल टू XB, क्योंकि हम जानते हैं XA प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1। सो बेटा XB क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस XA। सो 1 माइनस XA की जगह XB आ गया बेटा,
So this is your another equation beta, that is your P naught A minus P upon PA naught is equal to XB. This is nothing but it's your vapor pressure of the pure solvent minus vapor pressure of the solution upon vapor pressure of the pure solvent, that is equal to your mole fraction of the solute. Now बच्चों यहां जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला इस प्योर सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर था इसका, कुछ प्योर सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर है बेटा. जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो ये सॉल्यूशन बन गया. तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. सो बेटा this difference between the vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of the solution, that is nothing but it's a lowering of vapor pressure. So here P naught minus P naught solvent minus P solution जो है बेटा, that is a lowering of the vapor pressure. और बेटा जब हमने lowering of vapor pressure को divide कर दिया vapor pressure of the pure solvent से, that is a relative lowering in vapor pressure. So हम यहां कह सकते हैं कि relative lowering in vapor pressure is nothing but that is the ratio of the lowering in vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent. और वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर है. सो बेटा दिस वे वी कैन डिफाइन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा. सो अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नथिंग बट इट्स द रेशियो ऑफ दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द vapor pressure of the pure solvent and is equal to the mole fraction of the solute. Hope बच्चों this is clear. So this is your relative lowering in vapor pressure. Now बच्चों relative lowering in vapor pressure is nothing that I have told you. Relative lowering in vapor pressure is the ratio of the lowering in vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent and is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature. सो बच्चों डेफिनेशन आपकी इन फॉर्मूला से ही आ जाती है. अगर आप इस फॉर्मूला को देखें देन यू कैन राइट द दिस डेफिनेशन दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ दिस पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट दैट इज इक्वल टू एक्स बी. नाउ बच्चों राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. बच्चों जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट that is equal to the product of your vapor pressure of the pure component and its mole fraction, that is let's say PA is equal to PA naught XA. now बच्चों अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने गैस को डिसॉल्व किया है लिक्विड में और जो गैसेस कंपोनेंट है दैट इज वोलेटाइल. गैसेस कंपोनेंट क्या है बेटा? वोलेटाइल. ऑब्वियस गैसी कंपोनेंट है तो वोलेटाइल ही होगा. लेकिन बेटा इस सॉल्युबिलिटी दैट इज गिवन बाय द हेनरीज लॉ. और वो कैसे रहेगी? P इज इक्वल टू के एच एक्स. हेनरीज लॉ, दिस के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट बेटा. और ये जो प्रेशर है P हियर दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन बेटा. एंड X जो है मोल फ्रैक्शन है गैस का. नाउ बच्चों अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका है? दैट इज ऑफ योर PA नॉट एंड दैट ऑफ योर KH. ना बच्चों ये जो कंपैरिजन है वो यहां क्या शो कर रहा है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का और गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. सो जो डिफरेंस है यहां इन दोनों में बेटा वो क्या है? दैट इज इन PA नॉट A एंड KH. सो हम यहां कह सकते हैं बेटा जो आपका राउल्स लॉ है दैट इज द स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ जिसमें आपका KH किसके बराबर है? PA नॉट के बराबर है. Hope students this is clear. With this thank you. Subscribe, like and share my channel beta, that is MK classes. So thank you. Have a nice day.